हे गाइज वेलकम टू द चैनल। तो गाइज एक बार फिर से एक नई ब्लॉग में आप लोगों को लेकर के आ गया हूं और वो है पटना सेंट्रल स्कूल, जहां पे कि एनुअल फंक्शन 2024 मनाया जा रहा है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं पटना सेंट्रल स्कूल का एनुअल फंक्शन, जिसमें कि बच्चे अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और ये वार्षिक महोत्सव ये मनाया जा रहा है पटना सेंट्रल स्कूल में। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइज ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीता है। वैसे ऋषिका, क्या तुम्हें पता है कि So see, this fabulous event is being celebrated here since 44 years, and this is where ऑडियंस तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। आज पूरा ताली से भर जाना चाहिए स्टेडियम। Principals and loving parents and dear friends and participants. It is with immense joy and pride that I, Central School Dr. P.K. Sudarshan, respected guardians, and my dear this is the 44th annual function of this school, and I feel proud. हर बच्चों का that each and every child should be cared, should be taken care of by. अभी हमारे स्टेज पर म्यूजिक विभाग के लोग बैठे हुए हैं, सारे स्कूल के स्टाफ लोग हैं, हमारी बेटियां हैं। हम उसका बैग है, हम आपको आप अंदर लेके भारत माता की वंदे वंदे जय जय श्री राम। परम वंदनीय मातृभूमि, आज केंद्रीय विद्यालय वैसे समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यालय के कार्यक्रमों को देखता रहता था। अनेक कार्यक्रम जो हर वर्ष होते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से और हमेशा स्मरण रहता है, और हम गुजरता जब इस क्षेत्र से हूँ। ऑडियंस, तालियों की बरसात क्यों रुक गई? तालियों की बरसात बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। सन 1980 में विद्या
सीख है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री का और यहाँ के टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। A precious blossom or a lovely flower. Here, each one of us basks in the sunshine of our teachers' affection and attention, revels in the warmth of our beloved Maharaj Ji's love and care. We receive the daily quota of our food for the soul and mind by way of knowledge, life skills and values. We rejoice and carry out fun activities in the fine shower of rain. Oh, our precious garden of love is a perfect paradise on earth. Some of us have traveled from faraway places and started growing here. Some of us were planted 4 to 5 years back. We have grown into sturdy and fragrant flowers. We might be spreading completeness. Oh, let me introduce my dear friends to you all. The smell she has. Next to her is the delicate daisy, sparkly sunflower, dearest daffodil, and merry friends. I will introduce you as well. This is loving lily, exotic orchid. Are you wondering how all of us live so peacefully? Gardener, his tender touch cares each one of us. Every flower in this garden whisper a joyful secret. In my garden, even the smallest bud brings boundless joy. When flowers bloom, happiness is always in season. My A-species garden is a place where joy takes root. Our teachers are gardeners and they plant the seeds of learning. खरी की खरी रह गई beautifully captures the moment when Mata Sita first sees Lord Ram. Let's set the stage for this mesmerizing performance. Imagine the lush gardens of Mithila where Ma Sita is lost in a thought. And then Ram
delighted to have you here at the annual function of Acharya Shri Sudarshan Patna Central School. I am Manashri from class 8. And I'm Rishika, also from it. We are one of your hosts for this evening. Let's make this night memorable together. अच्छा मन्नत, बहुत दिन से मेरे मन में एक सवाल था. अच्छा, पूछो. तुम्हें पता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? सोचने दो. हाँ, सोचो. शायद स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, जब नीले रंग का वेवलेंथ कम हो जाता है. जवाब तो सही है तुम्हारा.
कैदी, देखो हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। पर मांगो क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे, ये सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें हैं। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वरदान कहता है, पकड़ लीजिए ना। ओहो। लक्ष्मण, तुम पर्वकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य न हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन वृक्ष के पीछे जाता हूँ, जीवित अथवा मारकर, लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। छोड़ क्या भैया? आपके सैनिक को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। भैया, मुझे क्षमा करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यही ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वही ठहरे, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही लिया। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती,
आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन सब तुम्हारा दास वही लंकेश्वर रावण। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ? नहीं लक्ष्मण।